Good morning, students. Okay, we are going to start with a fresh chapter. Okay, this is chapter 7 of geography, human environment, settlement, okay, transport and communication. Now, as the title of the chapter suggests, okay, so what we see, okay, the first heading of the chapter is human environment. ठीक है ना? तो जब हम मानव के जो है पर्यावरण या वातावरण के बारे में जब हम जिक्र करते हैं, तो जहाँ कहीं भी मानव निवास करने लगते हैं वही उनका वातावरण हो जाता है, वही उनका पर्यावरण हो जाता है. ओके, if we go for the definition of environment, what should be the suitable definition for environment? Anybody? What do we understand by the term Environment is our basic life support system. Yes, it is our basic life support system, and it has been derived from the word, which word? French word? Envirner, meaning which means neighborhood. Yes. Okay. So as far as the term environment is, okay, it is understood. Environment refers to the basic life support system. ठीक है ना? तो ये जो है environment क्या है? Basic life support system है. Okay. जिसमें हम लोग जो है रह रहे हैं. All that is surrounding us. ठीक है ना? All that surrounds us. हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द दिखाई देती है, ओके, इज पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. इज पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर ऑफ एनवायरमेंट? एनवायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स? Ma'am, three component. What are they? Human, natural, natural, human and human made. Yes, there are three components of environment. ठीक है ना? तो एक तरीके से हम लोग जो है रिवीजन कर ले रहे हैं अपने चैप्टर 1 का. तो there are three components of environment, and what are these? Natural, okay, human made and human. ठीक है ना? अब एक एक को डिफाइन करो. नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा बताओ? What will come in natural environment? trees, mountains, water. हाँ, if we categorize the natural environment, तो इसमें दो आएंगे, ठीक है ना? ओके, बायोटिक एंड अबायोटिक. ओके, ठीक है ना? Abiotic. Both the biotic and the abiotic world together they make the natural environment. ठीक है ना? जैविक अजैविक ये दोनों मिलके जो है ओके प्राकृतिक पर्यावरण को जो है तैयार करते हैं. अब मानव द्वारा जनित वातावरण कौन सा है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है? Ma'am, breeze, road. Yes. all that has been created or invented by human. Monuments. ओके, हर वो चीज जो मानव अपनी सुख सुविधा के लिए जो है तैयार करता है, ओके, उसे हम मानव द्वारा जनित जो है वातावरण कहते हैं या पर्यावरण कहते हैं. अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होगा बताओ? व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट? Religious. All that okay relates to the human beings. ठीक है ना? ओके, हर वो चीज जो मानव द्वारा संबंधित है, ठीक है ना, जिसमें जो है मानव के योगदान के बिना कुछ संभव नहीं है. अब मान लो धर्म की हम बात करते हैं, अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म के कोई संस्थापक होने चाहिए. हाँ, इस धर्म के कुछ जो है अनुसरण करने वाले लोग होने चाहिए. देयर शुड बी सम फाउंडर ऑफ हिंदुइज्म. There should be some followers of Hinduism. Then only we can think about this Hinduism. Okay, the religion. Okay, so human beings are part of this human environment. अगर हम इन तीनों environment को अगर हम लेते हैं, the most important one is the human beings. Okay, why we they call themselves an important resource or an important part of the environment? हम humans को क्यों important part कहते हैं? Any idea? And because they modify our environment. Yes, ठीक है ना? प्रकृति में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन उन चीजों को ओके उपयोगी कौन बनाता है? उन चीजों के अंदर मूल्य कौन डालता है? पत्थर है, ठीक है ना? लेकिन उस पत्थर को अगर आप तराश देते हो, तराश के अगर उसको किसी मूर्ति का रूप दे देते हो, तो वो मूल्यवान हो जाती है और वो उपयोगी भी हो जाती है. ठीक है ना? इट बिकम्स वैल्यूएबल ऑल्सो एंड इट बिकम्स यूजफुल ऑल्सो. इट हैज सम यूटिलिटी. Okay, you can sell it, you can keep it as part of your decorative item in the house. Okay, so it is humans with
okay, who apply their knowledge. किसके एंड से आ रही है डिस्टर्बेंस? Okay, so it is humans, okay, what we see, it is humans who apply their knowledge, who apply their ability, their technology, okay, to create natural resources into useful resources, to convert them, okay. So that is why humans are important, because they modify the environment. Okay, now let us proceed with the chapter. Ambuj, read beta. Ambuj, reading karo babu. Yes, ma'am. In chapter 1, we have learned that early human beings depend entirely on nature for food, clothing, and shelter. They learned new skill to grow food, build and means of transport and communication. In this way, they modify the environment where they live. Where people build their homes. Early human beings depend on trees and in caves where they started to grow crops. It became necessary to have a permanent home. The settlement उमंग, valleys and आपके एंड से water. प्रॉब्लम आ रही है. उमंग, म्यूट करिए खुद को. Yes, Ambuj, continue. The settlement grew near the river valley, that water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce, and manufacturing, human settlement became larger. Settlement flourished and civilization developed near river valleys. Do you recall the names of civilization that grew on the bank of river Indus, Tigris, Nile, and Huanghe? Huang Ho. Okay, make a correction. Huang Ho. Thank you. Okay. Now see the first term that is given here, settlement. Okay. So what are settlement? As per your book, settlements, okay, are places. These are the places, okay, where people build their homes. ठीक है ना? जहाँ पे जो है इंसान अपने लिए जो है, okay, people build their homes or houses and what? Okay, and live as a community. ठीक है ना? एक समुदाय के रूप में, एक समुदाय के रूप में जो है, जब इंसान कहीं पे जो है अपना निवास बनाते हैं, ओके, अपना निवास, ओके, और एक समुदाय के रूप में जब वो रहने लगते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? जब वो रहने लगते हैं, ओके, एक समुदाय के रूप में, तो उन प्लेसेस को हम सेटलमेंट्स कहते हैं. ठीक है ना? Now, if you take the case of the early men, so अगर हम अपने पूर्वजों की बात करते हैं, तो ओके, जो अर्ली मेंस थे, ठीक है ना, उनका नेचुरल सेटलमेंट क्या था? द नेचुरल सेटलमेंट ऑफ द अर्ली मैन वाज व्हाट? कहाँ पे निवास करते थे? Ma'am, caves. Caves and rock shelters. Where caves, okay, rock shelters, ठीक है ना? एंड व्हाट? और कहाँ पे निवास करते थे? एंड ट्री टॉप्स, ठीक है ना? पेड़ों के ऊपर भी जो है वो घर बना के जो है, ओके, वो लोग वहां पे निवास करते थे. ठीक है ना? ओके, तो उनके समय में जो है सेटलमेंट्स की जो है उतनी आवश्यकता तो थी नहीं. ओके, जहां मन वहां पे वो रह लेते थे. एडवर्स सिचुएशंस में अपने आप को बारिश से, थंडर से, लाइटनिंग से बचाने के लिए जो है वो प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे. ओके, और रात के समय में जो है जंगली जानवरों से बचने के लिए वो पेड़ों पे चढ़ जाया करते थे. ठीक है ना? तो पेड़ों पे निवास करते थे. लेकिन जैसे जैसे समय बदला, ओके, जैसे जैसे समय बदला और वो एक स्थान पे जब वो केंद्रित होने लगे, एक जगह पे जब वो सेटल होने लगे, तो उन्होंने लिए जो है अपने लिए जो है, ओके, घर बनाना जो है वो शुरू किए. ओके, सो एज फार एज द एक्टिविटीज आर कंसर्न, प्रीवियसली व्हाट दे वेर? Previously, okay, the early men were involved in what kind of activity? Ma'am, fooding, gathering, and hunting gathering. ठीक है ना? The previously the early men were hunter gatherers. ठीक है ना? पहले तो वो क्या थे? शिकारी थे, ओके, संग्राहक थे. उसके बाद, ओके, herders. ठीक है ना? ओके, previously the early men were hunter gatherers, herders, okay, and what? They were nomads. ठीक है ना?
एंड दे वर नोमैड्स। ओके, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहे थे। ओके, पहले जब वो हंटर थे तो क्या कर रहे थे, बड़े जानवरों को मूवमेंट को वो फॉलो कर रहे थे, बड़े जानवर छोटे जानवरों की मूवमेंट को फॉलो करते थे, ठीक है ना। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है बड़े जानवरों के मूवमेंट को फॉलो करते थे, ठीक है। और जहाँ कहीं शिकार खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह ये लोग जाके वहां पे जो है शिकार करना शुरू कर देते थे, और वहां के फल फूल जो है जो कुछ भी उपलब्ध था उसको खा के जीवन यापन करते थे। बट ओके, व्हेन द ग्रासलैंड्स डेवलप्ड, कब ग्रासलैंड्स डेवलप्ड हुए, टेल मी। Ma'am, 12,000 years ago. Yes, around 12,000 years ago when grasslands developed. Why these grasslands they developed? Grasslands क्यों develop हुए? अंबुज? Ma'am, due to Yeah. climatic change. Yes, due to climatic changes. ठीक है ना? Around 12,000 years ago when grasslands developed, okay? Due to climatic changes, what happened? The early man, he became what? The early man became a settled agriculturalist. ठीक है ना? Okay? The early men began to okay settle down. अब ये लोग एक जगह जो है सेटल होने लगे, क्यों? क्योंकि ये लोग जो है डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे, ठीक है ना। जानवरों को जो है ये लोग पालतू बनाने लगे। जब इन्होंने देखा कि उनके ऑफस्प्रिंग्स जो है हो रहे हैं, ओके, तो उनका शिकार करना इन्होंने बहुत हद तक बंद कर दिया और उनको जो है पालना शुरू कर दिया इन्होंने। Okay, they started domesticating animals and they also started domesticating plants, and this is how they became what? They became settled agriculturalists. And when they became settled agriculturalists, they started building settlements for themselves. Okay, पहले आप देखेंगे कि पहले जो है ये ना ओके एक गांव, छोटे गांव की तरह जो है ये एक सेटलमेंट बनाते हैं, जहाँ पे ओके बहुत सारे लोग जो है ये कलेक्टिव हंटिंग करते थे। जो उस समय के जो जानवर हुआ करते थे ना, आइस एज के जो जानवर हुआ करते थे, ओके, वो बहुत ही विशालकाय हुआ करते थे, तो उनका शिकार करना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। तो ये लोग जो है एक समूह के रूप में ओके एक कलेक्टिव हंटिंग की प्रक्रिया को ये लोग अपनाते थे। सारे लोग मिलके हंटिंग करते थे और जो कोई भी शिकार आता था ना उसको ये लोग आपस में बांट लेते थे। ओके, एंड दैट इज व्हाई you see that the villages developed, and further what we see, after the villages came the cities and then came the towns. So which place they found suitable for making the settlements, tell me? And river valley. Ma'am, river banks. रिवर बैंक्स, ओके, जो नदियों की जो घाटियां हैं, रिवर वैलीज हैं, ओके, उनको इन्होंने चुना ओके अपने निवास स्थान के लिए। क्यों? व्हाई? Ma'am, because river banks are the best suited for the cultivation. And land was fertile. यस, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम व्हाट वी सी, सेटलमेंट्स फ्लरिश्ड ओके नियर रिवर वैलीज, ठीक है ना। द सेटलमेंट्स आर फ्लरिशिंग नियर रिवर वैलीज, ओके, as the land was fertile, as the land was fertile, यहाँ पे वो लोग आराम से जो है खेती कर पा रहे थे, ओके, एंड व्हाट, वाटर वाज अवेलेबल, ठीक है ना। तो हर वो कार्य के लिए जिसके लिए जो है पानी की जरूरत पड़ती है वो उनके लिए जो है आसानी से वहां पे जो है नदियों की घाटियों में उनको उपलब्ध हो रहा था। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि सेटलमेंट्स जो है वो नदियों की घाटियों में जो है तैयार होते हैं और यहीं पे लोग जो है निवास करने लगते हैं। ओके, नाउ दिस सी settlements flourished and civilizations developed near river valleys. अब यहाँ पे कुछ जो है आपको जो है civilizations का जो है जिक्र किया गया है। Can you tell me which civilization developed near river Indus? Ma'am, Indus Valley civilization. What was the time Harappan period? civilization. What was the time period? 4,700 years ago. 100 ठीक years है ना? ago. आप इसको civilization को S करके भी लिख सकते हो, Z करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 4,700 years ago. Okay. Now, which was the archaeological site that was first developed related to this Indus Valley? Ma'am, Harappa. Harappa. Harappa and Mohenjo-daro. Ma'am, Harappa. Mohenjo-daro and Harappa, दोनों,
ठीक है ना, इसीलिए इसे मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है ओके मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो शहर जो है सबसे पहले जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है डिस्कवर करते हैं इस सभ्यता से संबंधित। नाउ द नेक्स्ट रिवर, विच रिवर इट इज? ओके, टाइग्रिस। Ma'am, Tigris. Ma'am, Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization. Mesopotamian, okay, civilization. ठीक है ना, I will send you some content related to these civilizations. Okay, try to go through it. ठीक है ना, anybody time period of this civilization? Ma'am, 6,000 years ago. पक्का? चलो पता कर Ma'am, लेंगे। I met and चलो ठीक है। ओके, रिवर नाइल, Egyptian Egyptian Ma'am, Egyptian Egyptian civilization. civilization. इसे हिंदी में क्या कहेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन को? Ma'am, मिस्र घाटी सभ्यता. मिस्र घाटी सभ्यता. मिस्र घाटी सभ्यता में जो अवशेष हमें मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? Ma'am, mummies. फारोज। ओके, pharaohs. फारोज एंड द पिरामिड्स। ठीक है ना, ओके, फारोज एंड द पिरामिड्स। नाउ रिवर हुआंग हो, Chinese. Chinese Chinese civilization. civilization. यस, चीनी सभ्यता। ठीक है ना, चाइनीज सिविलाइजेशन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिवर हुआंग हो? Ma'am, sorrow of China. येलो रिवर। Okay, it is also known as okay river yellow river, and it is also known as the okay sorrow of China. Now let us see some images related to this civilization. Okay, I hope it is available. See, these are some of the images related to this Indus Valley civilization. Okay, अब कुछ important जो है questions हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, अगर आप चाहो तो इसमें नोट कर सकते हो। ठीक है ना, नाउ हु फाउंडेड दिस सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है सबसे पहले किसने की? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, द फर्स्ट मॉडर्न अकाउंट्स ऑफ द रूइंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर दोज ऑफ चार्ल्स मैसॉन, ओके, अ डिजर्टर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। In 1829, Mason traveled through the princely state of Punjab, gathering useful intelligence for the company in return for a promise of clemency. ठीक है ना, ओके, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य कर रहे थे। Now see, as far as the age is concerned, the Indus Valley civilization, okay, was a Bronze Age civilization. पाषाण युग की ये सभ्यता थी। इस समय जो है आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। Am I right? Was iron discovered? अंबुज, क्या लोहे का, Please repeat the question. क्या लोहे का आविष्कार हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त? No, ma'am. When it No, was, ma'am. when it was Ma'am, Vedic invented? period. Ma'am, Vedic period. लोहे की आविष्कार कब हुई? Ma'am, Vedic period. Yes, ठीक है ना, तो देखो, okay, what are the three things about the Indus Valley civilization? See, it was larger than the ancient Egypt civilization. मिस्र घाटी सभ्यता से ये बड़ी थी। okay, ठीक है ना, अब विश्व के जो है महान जो है आप डेंटिस्ट आप देख सकते हो इस सभ्यता से आते हैं। At its peak, 10% of the world's total population lived in the ancient civilization of Indus Valley. तो पूरे विश्व की 10% आबादी यहाँ पे जो है रह रही थी। ओके, और देखो सबसे बड़ी चीज, ठीक है ना, टॉयलेट सीट्स वर मेड ऑफ ब्रिक। तो अगर हम इस सिविलाइजेशन के, ठीक है ना, ओके, अगर हम इस सिविलाइजेशन का जो है रख रखाव अगर हम कहते हैं, या फिर हम इनके जो है, ठीक है ना, आर्किटेक्चर अगर हम इसको लेते हैं, तो दे वर वेरी एडवांस्ड पीपल।
ठीक है ना. इफ यू गो थ्रू द इमेजेस ऑफ द ग्रेट ग्रैनरी, इफ यू गो थ्रू द इमेजेस ऑफ ग्रेट बाथ, आप देखेंगे कि ये सिविलाइजेशन जो है वो अपने आप में ही खास थी. उस समय में जो है उन्होंने इस सिविलाइजेशन को बहुत ही अच्छे से जो है डेवलप किया था. सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से जो है बनाई गई थी. As per the historians, the civilization collapsed because of changes. ठीक है ना. ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि, ठीक है ना, भूकंप के वजह से जो है ये सभ्यता का पतन हो गया होगा, या फिर बाढ़ आ गई होगी. इन सारे कारणों को जो है अनुमान किया जाता है कि इसके वजह से जो है और जब इस सभ्यता का पतन होता है तब हम देखते हैं कि आर्यंस हमारे देश में प्रवेश करते हैं. ठीक है ना. तो दीज आर द पीपल जिनके वंशज हैं हम लोग. ठीक है ना. दे आर कमिंग फ्रॉम विच प्लेस? दे आर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया. एंड द टाइम पीरियड इज 2000 BC to 1500 BC. Now one more important thing related to the civilization is, see, what language did the Indus Valley speak? They spoke ancient Dravidian language. ठीक है ना. तो प्राचीन जो द्रविड़ियन भाषा है उसमें जो है ये लोग बात किया करते थे. वैसे तो ठीक है ना, लिटरेरी वर्क्स जो है इस सभ्यता से संबंधित हमें उतने मिले नहीं हैं, लेकिन जो है हमें केव पेंटिंग्स मिले हैं और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं इस सभ्यता से संबंधित जो ये प्रूव करती हैं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है हुआ होगा. इनका है क्या? सुमेरियन सिविलाइजेशन. ठीक है ना. तो देखो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, कोई बच्ची कह रही थी 6000 वर्ष पूर्व. ठीक है ना. तो the time period is 3000. Correct yourself बेटा. ठीक है ना. The term Sumer is today used to designate southern Mesopotamia. Okay. So these are the some of the informations that we have. Now let us come back to the class, or should I go for some other civilization? मिस्र घाटी की सभ्यता. तो देखो, now see, as far as the civilization is concerned, to the ancient Egyptians themselves, their country was simply known as Kemet, which means black land, so named for the rich dark soil along the Nile River where the first settlement began. ये इमेज जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये मम्मी है कि फारो है? ये जो इमेज आप is it a Pharaoh. Can you, what kind of image it is? क्या इस इमेज को आप जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे? ये जो इमेज है, it is a mix of a human body and a lion. ठीक है Yes, ना? ma'am. It is a mix of a human body and a lion. इन दोनों का मिक्स है ये. ठीक है ना? तो आप लोग अगर जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है मिस्र घाटी की सभ्यता से संबंधित जो है यहाँ पे भी आप देखेंगे. ठीक है ना. इफ यू गो थ्रू द बरियल साइट्स ऑफ इनाम गांव, मेहरगर, ठीक है ना, बुर्जा होम, इन सारे प्लेसेस के अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स को अगर आप देखेंगे, बरियल साइट्स को अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे? हम मानते हैं कि ये जो, ठीक है ना, ये जो ममीज है, आप देखेंगे कि इसमें क्या करते थे लोग, वो लोग जो है मेडिसिनल जो है लेप लगा देते थे डेड बॉडी के ऊपर और उसको जो है कपड़े से बहुत बारीकी से उसे लपेट देते थे ताकि कीड़ा मकोड़े जो है मरने के बाद जो है शरीर को कोई कष्ट ना पहुंचाए. ठीक है ना. दे यूज्ड टू ममीफाई द डेड बॉडी.
हमारे यहाँ भी जो है अगर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देखेंगे कि जो लोग जिन लोगों की जो है दफनाया जाता था, उनको बरी किया जाता था, उनके साथ आप देखेंगे जानवर भी दफना दिए जाते थे। ओके, और वो व्यक्ति जो है पूरा आभूषण उभूषण पहने हुए जो है वो व्यक्ति जो है दफनाया जाता था। बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं। So there are some similarities related to this Egyptian civilization and Indus Valley civilization as related to burying of the dead is concerned. तो यहाँ पे मेन क्लासेस आप देख सकते हो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के। देयर वर peasants, artisans, scribes. Who are scribes? शिवांगी, स्क्राइब्स किसे कहते हैं? मैं ना बेटा आप नहीं बताओ, शिवांगी को बोलने दो। Ma'am, the person who copies the manuscript by hand. श्योर। प्रेजेंटली स्क्राइब्स में कौन सी कम्युनिटी आएगी? अगर हम तत्कालीन समय को लेते हैं, ठीक है ना, ओके, तो उसमें जो है कौन सी कम्युनिटी आएगी? विच कास्ट ऑफ द सोसाइटी विल बी कंसिडर्ड एज स्क्राइब्स? एनी आइडिया? अंबुज? मैम श्रीवास्तव कास्ट, ठीक है ना। अगर हम मोर पर्टिकुलर करके बोलना चाहें तो हम कहेंगे कि, ठीक है ना, ओके, सी हम लोग कायस्थ समुदाय को जो है स्क्राइब्स के रूप में देखते हैं। तो देखो, situated in a vast expanse of delta between the Tigris and Euphrates, ठीक है ना, ये दो नदियां हैं। Mesopotamia was the wellspring from which modern societies emerged. So these are some of the important facts. अब इस सभ्यता को आज के डेट में हम किस नाम से जानते हैं? मेजरली नोन फॉर इट्स प्रोपर। बहुत सारी चीजें जो हैं गूगल पे जो दिए रहते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। सो आई प्रेफर गोइंग थ्रू द बुक्स। ओके, सो आई विल सेंड यू कंटेंट रिलेटेड टू द बुक। मेरे पास बुक है, उसमें से कंटेंट आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है ना। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ के जो है बताइएगा मुझे, ठीक है। नाउ सी लेट अस प्रोसीड। सेटलमेंट्स कैन बी टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है ना। तो अगर हम अपने अर्ली मैन के सेटलमेंट को लेते हैं तो किस प्रकार का सेटलमेंट था उनका? उनका जो सेटलमेंट था वो क्या था? टेम्पररी था, ठीक है ना। इट वाज टेम्पररी टेम्पररी था। इन नेचर, अस्थायी था। ओके, लेकिन तत्कालीन समय के अगर हम सेटलमेंट्स को लेते हैं तो प्राय on an average what we see, most of the settlements are what? They are permanent. Permanent. Be it made up of mud or be it made up of marble, ठीक है ना। जो settlements हैं वो क्या हैं? They are what? Temporary and permanent. So what we can say, settlements are of two types. One is temporary and one is permanent, ठीक है ना। एक हो गया आपका permanent। अब ये देखो, ये सेटलमेंट्स जो है फर्दर जो है ये क्या होते हैं? फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है ना। तो टेम्पररी में क्या आएंगे? टेम्पररी में आ गए आपके ट्री टॉप्स, ठीक है ना। ओके, नेचुरल केव्स, ओके, रॉक शेल्टर्स, ये सारे जो है, अगर हम यहाँ पे टेंट लिखें तो क्या, कैन दिस बी कॉल्ड अ टेम्पररी सेटलमेंट? टेंट? Yes, Yes, ma'am. No, yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है ना। आपको कहीं जाना होता है आउटिंग पे, आई डोंट अंडरस्टैंड एवरी दिस पर्सन ओके जॉइंस द लिंक विद द नेम ए, हु इज इट? इज इट सीपी सर और somebody else? ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि टेम्पररी में ये सारी चीजें आ गई। ओके, नाउ एज फार एज परमानेंट सेटलमेंट्स आर कंसर्न्ड, वी कैन टेक मड हाउसेस, ठीक है ना। ओके, मड हाउसेस विद thatched roofs, ओके, वी कैन आल्सो टेक ओके बिल्डिंग्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है आपके जो है ओके स्थायी जो है निवास के रूप में जो है इनको आप देख सकते हो। नाउ सी, settlements can be temporary or permanent. Settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements. The people living in deep forest, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements.
They practice hunting, gathering, shifting, cultivation, and transhumance. What is transhumance? Who will tell? Rudra Pratap Singh. Seasonal movement of people. It is a seasonal movement of people. Only that much. Seasonal movement of people. Only that much. Is it the proper definition? Turn back your page. दूसरे पेज पे जाइए. क्या उतना ही है? पूरा पढ़ के बताइए अंबुज. It is a seasonal movement of people. People who rear animal move in search of new pasture according to changes in season. Okay. So अगर transhumance अगर ये प्रक्रिया है, ठीक है ना, seasonal movement of people along with their animals. So what kind of people they move? किस प्रकार के लोग जो हैं, okay, इस प्रकार के movement करते हैं? Do they keep any special kind of goat or sheep? Do they keep any special kind of goat or sheep? Higher altitudes पे कौन सारे लोग होते हैं? Can you tell me the name of those people? Okay, who are residing in higher altitudes when अक्सर हम क्या देखते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि ठंडियों के मौसम में लोग जो हैं प्लेन एरियाज में चले जाते हैं कड़ाके की ठंड से बचने के लिए. लेकिन एक ऐसे लोग हैं, एक ऐसे समुदाय के लोग हैं जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं ठंडियों में अपने जानवरों के साथ. कैन यू टेल मी हु दिस पीपल आर? People who rear pashmina goat. पश्मीना गोट एंड अंगोरा गोट्स. ठीक है ना? ओके, पीपल हु रियर पश्मीना गोट एंड अंगोरा गोट्स. ठीक है ना? अब इन दोनों बकरियों की खासियत क्या होती है बताओ? मैम गुड क्वालिटी ऑफ ऊल देते हैं दोनों. इसमें किसका ऊल सबसे बेटर होता है? पश्मीना बेटर होता है कि अंगोरा होता है? पश्मीना. नो, अंगोरा. Pashmina. अंगोरा इज फार बेटर देन पश्मीना. ठीक है ना? अंगोरा जो ओके जो मैम अंगोरा का कैप भी मिलता है. हाँ, अंगोरा प्रजाति की जो बकरियां होती हैं ना, उनके ऊन जो होते हैं पश्मीना से बेटर होते हैं. ठीक है ना? और लेकिन अंगोरा प्रजाति की जो रैबिट होते हैं, ठीक है ना, जो खरगोश होते हैं, उनके जो ऊन होते हैं वो ज्यादा सॉफ्ट होते हैं बकरियों के मुकाबले. जो अंगोरा प्रजाति के जो, ठीक है ना, खरगोश होते हैं, उनके ऊन जो है ज्यादा मुलायम होते हैं. दे आर मोर सॉफ्ट एंड वार्म in comparison to angora goats. So people who rear angora and pashmina goat, okay, तो मैम उनके उससे कुछ किया नहीं ना जाता है? क्यों नहीं किया जाता है? उससे भी कपड़े तैयार होते हैं. मैम एक कपड़े का नाम बताइए जो उससे तैयार होता है. चलो दिखाती हूँ. Okay, so here we are. However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build homes to live in. Okay, now one important fact has been shared here. Do you know the place where a building or a settlement develops is called its site? Okay, now tell me the difference between site and site and what kind of word it is. इसे हम क्या कहते हैं? I often ask children. Ma'am, हाँ, बोलो. Ma'am, can I tell? Yes, you can tell. means means place, and SIGHT means ability to see. Now make a sentence with this 2 words. Shivangi the Great. Every question has a tail, I often tell you. Now make sentence with the 2 words. Let Shivangi try. दोनों शब्दों से जो है एक एक वाक्य बनाओ जल्दी से. शिवांगी. यस प्रियांशु. Yes, ma'am. आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? मैम Who will tell? जल्दी बताओ. श्रेया. Make sentence with the... हाँ बोलो. Whoever it is, बताओ. प्रियांशु बताओ. मैम Taj Mahal is a very beautiful sight ना and बेटा. my sight is very weak. My eyesight is very weak. ठीक है ना? अगर Yes, आप my my sight, eyesight is very weak. ठीक है ना, तो उसमें I आ जाएगा, तो वो दूसरा शब्द हो जाएगा बेटा. हाँ मैम my eyesight हो सकता है. हाँ, उसमें जब तक आप I नहीं जोड़ोगे तब तक ये sight नहीं होगा. It is your
टास्क, ये आपका काम है, बिना आई को ऐड किए जो है साइड से आपको सेंटेंस बनाना है और मेरे नंबर पे भेजना है. लेट मी सी हु गेट्स अ डेयरी मिल्क सिल्क अगेन. One is fixed for Shreya. What is the baby of a kangaroo called? कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं? आदित्य. Ma'am, Joy. जोई. हाँ. Yes, ma'am. And what is the baby of a deer called? हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं? Ma'am, Fawns. फॉन. डो नहीं कहते हैं. Fawn. डो नहीं कहते हैं. DOE डो. मैम fawn, kid और calf. चलो ठीक है. So see, the place where a building or a settlement develops is called its sites. The natural conditions for selection of an ideal site are favorable climate, availability of water and suitable land, fertile soil. Okay, तो ये आपका जो स्कूल का साइट है, ठीक है ना, the school site, the site of the school building, it is very exciting. Okay, you can see everything is available nearby. ठीक है ना. तो जब कभी हमारे स्कूल के निर्माताओं ने, ठीक है ना, हमारे जो फाउंडर हैं, उन्होंने अगर इस